Okay, so in the last class, we have discussed the case of Ram Javaya Kapoor, and I think that case is very much important because in that case, I think you all have understood that how basically what is the meaning of the executive power and how the executive power can be defined. So today we are going to take up last few important cases of your topic one, which is basically related with federalism, and simultaneously we will also discuss some challenges which the idea of federalism is going to face in India. So whether this is a cooperative federalism, fiscal federalism, different dimension of federalism, including the idea of neo federalism. Firstly, we will take up the case of Kuldeep Nayyar versus Union of India. The judgment was pronounced in the year 2006, and this Kuldeep Nayyar judgment is very much important. There is a legislation, and I think most of you have heard about this legislation. The name of the legislation is the Representation of People's Act 1951. Representation of People's Act 1951. This Representation of People's Act 1951 was amended in the year 2003. And what is the amendment? Amendment is, by this amendment, the requirement of domicile in the state council for getting elected to the Rajya Sabha was deleted. What does it mean? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि certain things are ना, they are just the part of the convention, they are not written anywhere. For the sake of that, just take the example of the appointment of the prime minister. In most of the cases it is believed, like in the case of United Kingdom में जैसे होता है कि the PM is always directly elected by the people of Britain. Similarly, in the case of India, because we follow parliamentary form of the government, then it is believed that prime minister should always be from the Lok Sabha. It means he should be a directly elected by the people, because in a democracy, if you are going to represent the will of the people, then it is presumed that at least you must be, the prime minister must be directly elected. लेकिन इसमें एक important बात क्या है कि this thing is not written anywhere in the entire constitution. So this is, just a kind of a precedent. So it means there is no prohibition that even the prime minister can be from the Rajya Sabha. And for that sake, we can take the example of our prime minister, Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh was not the member of Lok Sabha, but he was the member of Rajya Sabha. और राज्य सभा में भी कहाँ से थे? राज्यसभा में भी ही वॉज फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम. तो ये जो अमेंडमेंट किया गया है, ये क्या कहता है? ये राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए स्टेट की डोमिसाइल के रिक्वायरमेंट को खत्म करता है. इट मीन सपोज आई एम फ्रॉम द यूपी, आई कैन कंटेस्ट राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया. मैं साउथ में लड़ूं, मैं नॉर्थ में लड़ूं, मैं ईस्ट में लड़ूं, मैं वेस्ट में लड़ूं, मैं कहीं भी लड़ सकती हूँ. एंड दिस अर्लियर व्हाट वाज द प्रोविजन कि यू मस्ट बी द डोमिसाइल ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर राज्यसभा. और देखिए इसके अपने रीजन भी होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सपोज आई एम फ्रॉम द यूपी, देन आई एम मच मोर well versed about the circumstances, the condition about UP. And suppose if I am going to contest election of Rajya Sabha from some other part of this country, then maybe I don't have that much of awareness about that particular state. तो इसका एक रीजन भी था कि आप जिस स्टेट से राज्यसभा में आ रहे हैं, उस स्टेट के बारे में आपको कुछ जानकारी भी होनी चाहिए. लेकिन ये जो 2003 का अमेंडमेंट था, through this amendment, what has been done, you can contest Rajya Sabha election from any state of this country, and there is no need of state domicile. So this particular amendment was challenged by Mr. Kuldeep Nayyar. You all are aware about his name. He's a very renowned name. He's a very renowned journalist. उन्होंने इसको चैलेंज किया. चैलेंज करने के पीछे जो इनका मकसद था वो ये कह रहे हैं कि स्टेट की डोमिसाइल वैल्यू को खत्म करने का मतलब है you are basically going to violate the federal structure of the Indian Constitution, which is the part of the basic structure. And obviously we have seen the case of Keshwanand Bharati, in which it was decided by the Supreme Court that this federal structure is the part of the basic structure. तो इनका ये कहना है कि once you are going to remove the requirement of domicile from a particular state, you are directly going to hit the federal structure of this country, and this is the main contention of the petitioner. ये इनका main contention है. लेकिन इसमें क्या है कि what Supreme Court has decided in this case, जैसे आपने लोकसभा के केस में भी देखा है कि कोई कहीं से भी जाकर के इलेक्शन लड़ता है. Just take the example of the present prime minister. He is from Gujarat,
but he is MP from Banaras, which is the part of Uttar Pradesh. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे इन्होंने जो इशू रेज किया है, उन्होंने ये इशू रेज किया कि राज्यसभा के लिए आपको उसी राज्य का डोमिसाइल होना चाहिए जहां से आप कंटेस्ट कर रहे हो, जबकि ये अमेंडमेंट जो है उस डोमिसाइल के रिक्वायरमेंट को खत्म करता है. सो इन दिस केस the Supreme Court has held that the Constitution of India is a federal state, but obviously we have discussed this issue a lot, but this is not as federal country as the United States of America, because you all are aware that in the case of United States of America we consider it as the most ideal form of the federalism, जहां पे states की अपनी एक अलग तरीके की sovereignty है, and the people of United States of America, they have dual citizenship and simultaneously they are double Supreme Courts also. तो उनके अपने local laws भी हैं, state laws हैं, उनकी अपनी state citizenship है. But once you are going to apply the provisions of American Constitution over the Constitution of India, there is a lots of dissimilarity also, और इसको हम लोगों ने काफी लेंथ में डिस्कस किया है. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एज फेडरल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, बल्कि इन्होंने ये कहा, और ऑब्वियसली नाउ इट इज प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट प्रोविजन, that the federal structure of the Indian Constitution is tilted in the favor of the Union. तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे डोमिसाइल के रिक्वायरमेंट जो है टू गेट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इट शुड नॉट बी द नेसेसरी प्री कंडीशन, क्योंकि इसका एक रीजन होता है, कहीं ना कहीं आपको यूनिफिकेशन की भी बात करनी होती है. इसीलिए आप देखते हैं कि हमारा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसमें हिंदुस्तान का एक व्यक्ति किसी स्टेट से जाके किसी दूसरे स्टेट में बस सकता है. इट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन दैट यू आर नॉट अलाउड टू मूव एंड यू आर नॉट अलाउड टू गेट सेटल्ड और यू आर नॉट अलाउड टू डू सम वर्क इन सम अदर स्टेट. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि बिकॉज दिस इज नॉट अ प्योर फेडरल कंट्री बट इट इज tilted in the favor of the central government or the union, it cannot be said that this particular this particular amendment, this is in the violation of the federal structure, because here the states cannot claim that kind of federalism as they are enjoying in the case of United States of America. So through this amendment, the requirement of domicile in the state concerned for getting elected to the Rajya Sabha is deleted, which according to the petitioner is violative of the basic structure but not accepted by the Supreme Court of India. तो Supreme Court of India ने इस केस में, कुलदीप नैयर के केस में, ये बोला है कि ये जो आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, दिस इज अ constitutionally valid legislation, valid amendment. The reason being India is not a pure federal country, और यहाँ पे स्टेट उस तरीके की इम्यूनिटी को क्लेम नहीं कर सकते हैं जिस तरीके की इम्यूनिटी दे आर एंजॉइंग इन द केस ऑफ United States of America, which is a pure federal country. So this is a very important judgment. इसका अपना positive and negative aspect आप अपना देख सकते हो, but the positive aspect of this particular amendment or this particular judgment is they are in a way allowing people to contest election from any part of the country. तो लोकसभा के लिए तो है ही, राज्यसभा के लिए भी इन्होंने कर दिया कि for the राज्यसभा also it is not necessary that you should be the domicile of a particular state to contest election for Rajya Sabha. So that is the judgment of Kuldeep Nayyar versus Union of India. ये छोटा मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ. और दूसरा आपका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, दैट इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इट वाज डिसाइडेड इन द ईयर 2004. एक्चुअली आपको पता है कि पंजाब में 5 नदियां हैं. पंजाब इज अ स्टेट वेयर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर, बट लाइक हरियाणा, लाइक दिल्ली, दे आर नॉट एंजॉइंग सेम काइंड ऑफ फैसिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो यहाँ पे क्या होता है कि राइट दिल्ली इज डिपेंडेंट अपॉन हरियाणा एंड सिमिलरली हरियाणा इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन स्टेट ऑफ पंजाब टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया? यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि यूनियन गवर्नमेंट ने दे हैव इशूड अ नोटिफिकेशन ऑन मार्च 24, 1976, और नोटिफिकेशन से इन्होंने क्या बोला कि एक सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट बनेगा और जिसका कि टोटल जो स्ट्रेच एरिया होगा दैट विल बी 214 किलोमीटर. तो 214 किलोमीटर लंबी एक कैनाल होगी. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट कैनाल? टू कनेक्ट सतलज एंड यमुना एंड फैसिलिटेट वाटर सप्लाई इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. अब ये जो 214 किलोमीटर का स्ट्रेच था सतलज यमुना लिंक कैनाल का, इसमें से Punjab has to make 122 kilometers and Haryana has to make 92 kilometers.
हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा ने अपना 92 किलोमीटर्स बना दिया, but there is no considerable development on the part of the state of Punjab, because maybe Punjab is not very much interested in sharing the water with the state of Haryana. इस प्रोजेक्ट को सरकार में ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके निकाला था, एंड द कॉस्ट वुड हैव टू बी मेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ दिस सतलज यमुना लिंक. When state of Punjab has not completed its part of making of Satluj Yamuna link, then the state of Haryana decided to move to the Supreme Court. जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द स्टेट ऑफ पंजाब टू फॉर द कंप्लीशन ऑफ द पोर्शन विच बिलोंग्स टू देयर पर्टिकुलर एरिया, कि आप अपने एरिया में जो सतलज यमुना लिंक का कैनॉल है उसके काम को आप पूरा करो. बट यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूअसली सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, बट द कॉन्टिन्यूअसली द पंजाब गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. देन अल्टीमेटली ऑन 4th जनवरी इन 2004, 1976 में शुरू हुआ था, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, एंड थ्रू दैट ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट. उन्होंने बोला कि अब पंजाब को छोड़ दो. नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, यूनियन गवर्नमेंट will carry out its obligation and directed to mobilize a central agency to take control of the canal work of Punjab. मतलब उन्होंने बोला पंजाब जब अपना काम नहीं कर रहा है तो अब now this is the responsibility of the central government to execute the portion which has to be performed by the state of Punjab. तो इन्होंने बोला कि आप पहले तो आप पैसा दे रहे थे, लेकिन अब आप अपनी मशीनरी भी लगाओगे, और मशीनरी लगाने के साथ साथ जो भी स्टाफ वहां पे इस कैनाल के काम को पूरा करेगा, दे मस्ट रिसीव एडिक्वेट सिक्योरिटी एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिप्यूट किया टू फिनिश द work of the state of Punjab. Or simultaneously in this case the Supreme Court has also imposed cost over the state of Punjab for constantly defying the order of the Supreme Court. उन्होंने बोला कि आप हमारे ऑर्डर को लगातार नहीं मान रहे, इसके लिए स्टेट ऑफ पंजाब पे कॉस्ट भी लगाई गई. यहाँ पे one objection was raised by the state of Punjab, and the state of Punjab is saying that the Supreme Court cannot exercise its jurisdiction under Article 131 because this is a dispute which is related with the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मींस इट इज अ काइंड ऑफ अ वाटर डिस्प्यूट. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला, आपको पता है कि फॉर द वाटर डिस्प्यूट देयर इज अ डिफरेंट क्लॉज, एंड दैट इज आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो वाटर डिस्प्यूट को कैसे किया जाए, इसके लिए वाटर डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है. बट इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट दिस इज नॉट अ वाटर डिस्प्यूट. ये वाटर डिस्प्यूट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड विद द शेयरिंग ऑफ वाटर बिटवीन द टू स्टेट्स, बट दिस इज something which is related with the finishing of an unfinished work on the behalf of the state of Punjab. तो चूंकि ये water dispute नहीं है, so we can exercise our original jurisdiction under Article 131, and by exercising our original jurisdiction we are giving order to the central government to complete the part of the state of Punjab. So that was the case of state of Haryana versus state of Punjab. And what is the best part of this judgment कि इन्होंने अगर पंजाब की अगर आप एक एज अ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात करिए तो उन्होंने बोला इट्स एन एग्जांपल व्हिच इज बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू सेटल एन एग्जांपल इन द डायरेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. बीइंग द पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, द कोऑपरेशन अमंग द स्टेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इफ वन स्टेट इज लिटिल बिट resisting this aspect that they are not going to fulfill their liability or their responsibility towards the other state, then in that circumstances the Supreme Court through its order can implement such kind of things. And basically through this judgment the Supreme Court had successfully implemented the idea of cooperative federalism. So that is the case of state of Haryana versus state of Punjab. तो यहाँ पे आपने देखा कि भले ही स्टेट्स से जो है स्टेट्स के थ्रू होकर के नदियां जाती हों, या दे आर इन द पोजीशन वेयर दे कैन कंट्रोल द वाटर, बट to implement the spirit of the cooperative federalism, such kind of orders can be passed by the Supreme Court. और यहाँ तो ये water dispute Supreme Court ने माना ही नहीं. Supreme Court ने बोला है कि this is something which is related with unfinished work of the
स्टेट ऑफ पंजाब. सो दैट इज द केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सतलज यमुना लिंक. अब यहाँ पे हम लोग कुछ और केसेस, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जहां पे हमें ये देखने को मिला कि देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है Raghuram Rajan Committee recommendation or Raghuram Rajan Committee report, which was submitted in the year 2013. So what is basically Raghuram Rajan Committee report? इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा. This committee was constituted by then UPA government for the composite development index for all the states. So what was their role? Their role was to evolve a composite development index for all the states. अभी तक इसमें क्या होता था, जब आप स्टेट्स को देखोगे, इवन वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो, दैट फ्यू स्टेट्स आर डेवलप्ड स्टेट्स, फ्यू स्टेट्स आर डेवलपिंग स्टेट, फ्यू स्टेट्स ऑफ बीमारू स्टेट्स, और अब तो काफी सारे उससे निकल चुके हैं. वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज अ गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला. मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला is being used since past several decades. For what purpose? For the allocation of funds among the states. तो states के बीच में fund का allocation कैसे होगा? You all are aware about these things and we have discussed these things earlier also, that financially central government is more powerful in comparison to the state governments, and state governments are very much dependent upon the center for their for the fulfillment of their different requirements. So what is the Gadgil-Mukherjee formula? The role of the Gadgil-Mukherjee formula is to ascertain that how the funds should be allocated between different states. तो यहाँ पे एक चीज क्या होता है, एक नॉर्मल जो रूल होता है वो ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है स्टेट्स को, सेंट्रल असिस्टेंस देती है, आप सबको पता होगा. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को असिस्टेंस देती है उसमें नॉर्मली 30% ग्रांट होता है और 70% लोन होता है. तो लोन का मतलब ये हुआ कि जो 70% स्टेट्स को लोन देगी सेंटर, उसको वो वापस भी लेगी. बट वंस अ state is going to attain the status of special category, then there is a lots of change. क्या हो जाता है, जैसे ही स्पेशल कैटेगरी में कोई भी स्टेट आता है, then remember now that state will receive 90% grants and 10% loan. तो 90% ग्रांट जो है, that's a great relief for the state governments. और इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि if a state is going to get the status of the special state, then only 10% they are receiving as a loan and 90% they are receiving as grant, while otherwise they are receiving 30% as grant and 70% as loan. तो आपकी जो स्टेट की लाइबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा घट जाती है. तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक मिस्टर नवीन पटनायक, मिस ममता बनर्जी एंड देन चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस जे जयललिता, they are putting allegation against then UPA government कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये biased है. और biased किस लिए है? Because they are not talking about the equitable and justiciable distribution of the central government funds to the state government. इनका ये मानना था कि सेंटर ने जो ये रघुराम राजन कमेटी बनाई है, विच इज ट्राइंग टू क्रिएट सम न्यू फॉर्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स अमंग द डिफरेंट स्टेट, इसमें ये कुछ नए क्राइटेरिया कुछ स्पेशल स्टेट्स को बेनिफिट देने के लिए क्रिएट करना चाहते हैं. जैसे कि इसमें इनका ये एलिगेशन है कि स्टेट ऑफ बिहार को ये स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं, उसका बेनिफिट देना चाहते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट इन 2014 इलेक्शन इफ यूपीए गवर्नमेंट डज नॉट कम इन फुल मेजॉरिटी, देन दे कुड क्रिएट सम फ्यूचर पॉलिटिकल एलाई. तो इनका ये मानना था, ये जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर थे, वो जयललिता हो, नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी हो, व्हाट दे वर एलिजिंग दैट this recommendation of Raghuram Rajan committee is basically, it is biased, and it is just to give benefit to certain states which may be the future allies of the future allies of the UPA government in 2014 इलेक्शन. तो ये एक नया डिस्प्यूट रघुराम राजन कमेटी का आया on the submission of the report by the Raghuram Rajan, that this is in the violation of the basic federal features or the basic
फिजिकल फेडरलिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक और डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, एनसीटीसी को लेकर के आता है। आपने तीन चीजों के बारे में सुना होगा, वन इज एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, अनदर वन इज एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एंड द थर्ड वन इज द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको पता है कि एनआईए इज ऑलरेडी वर्किंग एंड एनआईए हैज सम स्पेशल पावर। स्पेशल पावर किस तरीके की है कि एनआईए किसी भी स्टेट में जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, बट इन द केस ऑफ एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, this UPA government basically wanted to give so much of power to NCTC, और ये इतनी पावर देना चाहते थे कि बेसिकली एनसीटीसी इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी, तो इनको पावर क्या दी गई कि किसी भी स्टेट में जा करके बिना विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन। सो द यूपीए गवर्नमेंट वांटेड टू गिव देम सो मच ऑफ पावर। और इसमें इनकी एक खास बात क्या थी कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द यूपीए गवर्नमेंट वांट्स टू मेक एनसीटीसी इवन विदाउट पासिंग अ बिल। तो ये कोई इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस के लिए, मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस के लिए दे डिड नॉट वांटेड टू create this NCTC through a separate bill, but they wanted to create this body under the Unlawful Activities Prevention Act, क्योंकि इसमें एक प्रोविजन है जो ये इनको अथॉरिटी देता है कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को काउंटर टेररिज्म के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो यूपीए गवर्नमेंट क्या चाहती थी, अगर आप बिना बिल लाए हुए थ्रू एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बॉडी अंडर द एग्जिस्टिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो इसमें स्केप आपको क्या मिलता है, यू आर गोइंग टू अवॉइड डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो जो नॉन यूपीए स्टेट्स थे उनका मेन ऑब्जेक्शन क्या था कि एनसीटीसी के थ्रू बेसिकली द यूपीए गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट स्टेट विच इज स्पेसिफिकली द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो एनसीटीसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है विदाउट इन्फॉर्मिंग देम, एंड दस दे आर बेसिकली ब्रीचिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट of the federal structure of the Indian Constitution. So that was the basic main reason of the opposition of NIA. तो NIA जो NCTC, तो NIA जो NIA, NCTC और CBI में डिफरेंस क्या है कि NIA was established in 2008 and it is a investigating agency. NCTC is an intelligence agency, but once you are going to compare the power of the NCTC with NIA, NCTC had a lots of power and that was the main reason of opposition. तो ये आपका NIA और NCTC हो गया। CBI को लेकर के आप लोगों को एक चीज पता होगी, because there was a time when there was some people were demanding that the CBI should be abolished also. तो CBI के केस में भी आप याद रखिएगा कि CBI is also not a statutory body, but it has been created through an executive order in the year 1963. सीबीआई के केस में खास बात क्या होती है कि सीबीआई रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सीबीआई की खास बात क्या होती है कि लाइक एनआईए, सीबीआई कैन नॉट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस और कैन नॉट इनिशिएट एनी इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, दैट द कंसर्न स्टेट विल रिक्वेस्ट टू द सेंटर टू इनिशिएट सीबीआई प्रोब। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो उसमें जो अफेक्टेड पार्टीज होती हैं वो कहती हैं कि हमें लोकल पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, देयर शुड बी ए सीबीआई इंक्वायरी। तो सीबीआई इंक्वायरी में एक चीज आप याद रखिएगा कि सीबीआई इंक्वायरी सिर्फ दो तरीके से की जा सकती है। The first thing is the state government is going to request to the central government for CBI inquiry, and the second thing is the Supreme Court is going to give order, या हाई कोर्ट ऑर्डर देता है स्टेट को कि आप इस पे सीबीआई इंक्वायरी कराओ, और तब जाकर के सीबीआई इंक्वायरी जो है उस पे कराई जाती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनआईए, एनसीटीसी एंड सीबीआई। बट इन द केस ऑफ एनसीटीसी ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट्स ऑफ अपोजिशन ऑन द पार्ट ऑफ द different state on this basis that by the creation of NCTC basically the central government wants to intervene in the area of law and order which is in the exclusive domain of the स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक और आपको चीज समझ में आती है कि किस तरीके से जो इसका अपोजिशन किया गया। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी आप देख लीजिएगा, जिसमें एक आपका आता है रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन में क्या होता है
कि एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि जब आप फिजिकल फेडरलिज्म की बात करते हो इंडिया में, देन अभी तक क्या होता था, states were very much dependent upon the central government. So it is the central government which is going to decide that how the revenue should be allocated among the different states. तो अभी तक क्या होता था कि नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो कलेक्टेड रेवेन्यू का 30 to 32% ही स्टेट्स के साथ शेयर किया करती थी. बट 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, दे हैव सजेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट that now there should be a revenue sharing between the center state on the basis of 42% enhancement, 42% and कितना बचा, 56%, 42% एंड 56%. तो 42% एंड 56% का मतलब हुआ 42% ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू शुड बी शेयर्ड विद द डिफरेंट स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो आपका 14th फाइनेंस कमीशन है वो क्या कह रहा है, वो बात कर रहा है 10% एनहेंसमेंट की. Earlier, central government used to share 32%. Now, Finance Commission is suggesting that the center should share 42% of the collected revenue with the different state governments. तो इस चीज को, ये जो 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, that was accepted by the मोदी गवर्नमेंट इन द ईयर 2015. और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम 32 के बजाय 42% जो रेवेन्यू है वो हम स्टेट्स के साथ जो है शेयर करेंगे. एंड रिमेंबर, दिस इज द हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस शेयरिंग विच द सेंटर इज गोइंग टू शेयर विद द स्टेट, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यूज विच द सेंटर इज गोइंग टू शेयर विद द स्टेट. सो इट इज अ काइंड ऑफ वे through which the states are going to be fiscally मोर एम्पावर्ड. तो ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सेंटर ने अब स्टेट्स को ये भी बोल दिया कि 42% तो हम आपको शेयर करेंगे, बट यू नो दिस इज वेरी मच लाइक द थ्योरी विच वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, दैट यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अस फॉर ईच एंड एवरीथिंग. जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि स्पेशल स्टेटस की बात की गई, तो स्पेशल स्टेटस हैज बीन गिवन टू 11 स्टेट्स एज ऑफ नाउ, जिसमें आपकी 7 सिस्टर्स हैं, फिर जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है. सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच स्पेशल स्टेटस इज गिवन टू अ पर्टिकुलर स्टेट, और इसमें गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला फॉलो होता है. तो जब आप फॉलो करते हो ना कि डिसाइड करते हो कि टू विच स्टेट द स्पेशल स्टेटस शुड बी गिवन, तो उसमें द टेरेन, द जियोग्राफिकल टेरेन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Population density is very much important. Poverty infrastructure is very much important. How much population belongs to the tribal community, that is very much important. And all above, the most important thing is the location of the state. So if any state is lying in a border area, कि जहाँ पे वो पड़ोसी देश से उसका border share हो रहा है, वहाँ पे that can also be a criteria of considering that whether the special status should be given or not. तो special status का जो अभी मैंने आपको रघुराम राजन कमेटी के बारे में बताया था, उसमें उस क्राइटेरिया के अलावा कुछ क्राइटेरिया क्रिएट करने की बात हो रही थी, जिसको लेकर के बाकी लोगों का ये एलिगेशन था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू गिव बेनिफिट टू सर्टेन स्टेट विद सम स्पेशल पर्पस. तो ये जो 42% पे 32 से 42% पे आया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया है कि वी आर गोइंग टू शेयर 42% विद द स्टेट, बट साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो आस्किंग स्टेट्स टू परफॉर्म. तो परफॉर्म एंड पेरिश का जो आपका मैनेजमेंट का क्राइटेरिया होता है, they are trying to apply that criteria on the states also, and that's why yesterday I was talking about the carrot and stick theory. So states will have to perform for everything, they cannot remain dependent upon the central government. इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि different states are continuously demanding for the special status, like Bengal is demanding, Andhra is demanding, Bihar is demanding, Orissa is demanding, and most of these states are those who are constantly facing some or other kind of natural calamity. तो अब स्टेट क्या करता है, सेंटर क्या करता है, सेंटर स्पेशल स्टेटस तो अभी भी नहीं दे रहा है, बट वो क्या करता है फॉर सर्टेन स्कीम्स, जैसे मान लीजिए कहीं पे मेट्रो चलानी है, या जैसे अभी आपने देखा कि यूपी में एयरपोर्ट आ रहा है, और एनी अदर स्कीम विच इज फॉर द पब्लिक गुड, सेंटर स्पॉन्सर दोज स्कीम्स विच आर गोइंग टू बी रन बाय द पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स. तो वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की पर्टिकुलर स्कीम्स को फाइनेंशियली असिस्ट करता है. तो अब जो क्राइटेरिया चल रहा है वो ये चल रहा है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्टेटस ऑफ द स्पेशल स्टेट, द सेंटर provides financial assistance to the state government for the completion of certain big projects.
तो ये आज के समय में नया है, क्योंकि नए स्टेट्स को अब, बिकॉज दिस इज क्वाइट बर्डनसम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे वो 90% ग्रांट को बियर नहीं कर सकती कि हर स्टेट को 90% को ग्रांट दे और 10% लोन दे। तो अब ये जो आपका 42% शेयरिंग ये स्टेट्स के साथ कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि नाउ यू विल हैव टू परफॉर्म। इसीलिए आपने देखा होगा, जो कल मैं आप लोगों को बता रही थी, कि नाउ द डिफरेंट स्टेट्स आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स में, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टू एनकरेज एंड टू इनवाइट द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। इसीलिए आप देखिए छत्तीसगढ़ भी करता है, झारखंड भी करता है, यूपी भी करता है, बिहार भी करता है। They are trying hard to invite more and more investors to invest in their respective states. So this is again something where the central government has decided to share 42% revenue with the state government. Again, it is a welcoming step, because this is one step ahead in the direction of the फिजिकल फेडरलिज्म। इसके बाद एक आपका आता है जो आपने बहुत सुना होगा कि नाउ द प्लानिंग कमीशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में आई थिंक यू ऑल हैव सम आइडिया। प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्लानिंग कमीशन यूज्ड टू मेक प्लान्स एंड दे यूज्ड टू इम्पोज दोज प्लान्स ऑन द स्टेट्स। सो अर्लियर इन द प्लानिंग कमीशन स्टेट्स हैज नो फाइनल और नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव रोल इन द मेकिंग ऑफ प्लानिंग। बट जो नीति आयोग बना, जिसे कि कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की खास बात क्या है कि इन द पॉलिसी मेकिंग द रोल ऑफ द स्टेट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड। तो इसमें पार्टिसिपेशन स्टेट्स का बढ़ा दिया गया, जो कि प्लानिंग कमीशन में बिल्कुल भी नहीं था। तो ये एक तरीके से पॉलिसी थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडिया, विच वाज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किसका होना है? स्टेट्स का होना है। So because obviously the development is something which is related with the development of states, their consent and their participation in certain policies becomes equally important. इसलिए जब आप इसके गवर्निंग काउंसिल को देखते हैं, इसके रोल को, इसके स्ट्रक्चर को देखते हो नीति आयोग के, तो गवर्निंग काउंसिल में इसके ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स वो होंगे। इसके साथ साथ यूटीज के यानी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यानी एलजीज होते हैं। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग होगा। सो दिस नीति आयोग विल बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर्स का होगा, यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का होगा, स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, स्पेशल मिनिस्टर्स होते हैं, जिसको कि लगता है कि इसका पार्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके अभी जैसे नितिन गडकरी जी हैं, सो इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू हुम दे आर गोइंग टू इनवाइट एज स्पेशल इनवाइटीज। और उसके साथ ही साथ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं अपने एरिया में, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि बेसिकली द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज identify the natural resources and simultaneously to decide that how they should be distributed। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक कंसोलिडेटेड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए, उसमें स्टेट्स को साथ ला करके सेंटर और स्टेट मिल बैठ करके काम करें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन डिड नॉट गिव सो मच ऑफ स्कोप टू द डिफरेंट स्टेट्स, but in the case of Niti Ayog, states have adequate representation, and that is in a way a step ahead in the direction of strengthening the cooperative federalism between the center and state, and obviously among the different states. So that is the importance of Niti Ayog। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको सुनने को मिलती है और वह है जीएसटी काउंसिल, क्योंकि ये तो हम लोग लगातार जीएसटी काउंसिल के बारे में सुन रहे हैं। एंड यू ऑल आर अवेयर दैट थ्रू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, basically indirect taxes has been removed, majority of them, and now there is a consolidated tax, yani one country one tax जिसको आप बोलते हैं, and that is known as this GST, goods and services tax। but goods and services tax की जब आप बात करेंगे, when the government planned to introduce the GST, there was a lots of resistance on the part of the developed states। डेवलप्ड स्टेट्स को नुकसान क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर आप बात करते हो तो यू ऑल आर अवेयर दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी में नुकसान किसका हो रहा था? द डेवलप्ड स्टेट्स वर नॉट इन द एग्रीमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि दिस इज एडवर्सली गोइंग टू हिट देयर इंटरेस्ट। तो
तो जीएसटी was favoring the interest of the underdeveloped states, but it was against the interest of the developed states. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सरकार ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया तो सरकार ने डेवलप्ड स्टेट्स को बोला कि आपके जो भी लॉसेस हो रहे हैं फाइनेंशियल, उसको हम कुछ समय के लिए कवर अप करेंगे एंड बाय द टाइम द थिंग्स विल बी स्टेबलाइज, क्योंकि वो भी ग्रो कर जाएंगे जो कमजोर है। और मैंने जैसे आपको बताया था ना कि ऑल द स्टेट्स एंड अ कंट्री दे आर लाइक द ह्यूमन बॉडी, सो ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी इक्वली स्ट्रेंथन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला कि हम जो है डेवलप्ड स्टेट्स को फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे। लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की बात आती है तो जीएसटी काउंसिल आपको पता है कि द डिसीजन इज बेसिकली टेकन बाय द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल में किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि जीएसटी काउंसिल जो होती है दैट इज कंप्राइजेस ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री केंद्र सरकार का, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस राज्य मंत्री, इसके अलावा ऑल फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल दी स्टेट्स, जो भी राज्य होंगे, अलग अलग राज्य हैं, उनके वित्त मंत्री उसका हिस्सा होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ये तो आपकी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जीएसटी काउंसिल का, जिसमें मैंने आपको बताया फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑल फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें जब पावर ऑफ वोटिंग की जब आप बात करते हैं तो 2/3 वोटिंग पावर इज वेस्टेड विद स्टेट एंड 1/3 वोटिंग पावर इज वेस्टेड विद सेंटर। तो जब आप जीएसटी काउंसिल में पावर शेयरिंग की अगर आप बात देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि स्टेट्स आर मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे डिसीजन जो लिया जाता है वो 3/4 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से लिया जाता है। तो अंडर द जीएसटी रेजिम ऑब्वियसली द सेंटर एंड स्टेट विल एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। आपको पता है अभी भी निर्मला सीतारमन जी ने इसकी मीटिंग ली थी। तो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट द सेंटर एंड स्टेट आर गोइंग टू एक्ट। जैसे अभी आपने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे टैक्स बढ़ाने की बात हो रही थी, तो उसको जीएसटी काउंसिल ने निगेट कर दिया, तो ये हुआ कि नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वन नेशन वन टैक्स का ये जो आइडिया है, we have moved one step ahead, and this is again a very important aspect where we can think that this is not only the example of cooperative federalism, but this is also an example of fiscal federalism where the states are going to participate equally along with the central government in the direction of distributing or imposing taxes or changing the slabs of taxes which earlier normally used to be done by the central government. तो ये जो जीएसटी काउंसिल है, it is again a step taken by the center to enhance the cooperative federalism between the center and state and among different states. So that is GST council. एक और इसमें important है and that is the National Development Council. जैसे आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में सुना होगा, तो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। Interstate Council, Article Finance Commission, Article 280, a constitutional body. Interstate Council, Article 263, a constitutional body. But remember, there is a National Development Council, and this National Development Council, it is neither a constitutional body nor it is a statutory body. तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये जो है देश का विकास किस तरीके से किया जाए उसको लेकर के एक सामंजस्य बढ़ाना बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड अमंग द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि कई बार स्टेट्स में भी एक दूसरे में नहीं पड़ती है। तो इसका काम क्या होता है, एक तरीके के कोऑपरेशन को बढ़ाना। सो दिस इज अ एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग and deliberations on development matters in India, and this is presided over by the Prime Minister of India. तो National Development Council की जो भी मीटिंग होती है that is presided by Prime Minister of India, and it was set up in the year 1952. तो जब आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ही समझ में आ जाएगा कि in the Constitution of National Development Council adequate representation has been given to the state। क्योंकि इसमें कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होगा, ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि कैबिनेट की हर मिनिस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, and simultaneously member of Niti Aayog who are the planners who are going to make the policies for the development of the country। तो यहाँ पे इतने सारे लोग मिलकर के आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इट इज बेसिकली टू एनहांस द कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट्स एंड ऑल्सो the Niti Aayog, which is basically a policy making body of the
of the government. तो ये जो आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इट इज दो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग फॉर द नेशनल डेवलपमेंट. इसका जो मेन फंक्शंस होते हैं वो होते हैं गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल प्लान, including the assessment of the resources, discussing important social and economic policies affecting नेशनल डेवलपमेंट. तो ये क्या करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट्स को लेकर के जितने भी तरीके के प्लान्स बनते हैं उनका रिव्यू करना, उनका असेसमेंट करना और उस पर कंसल्टेशन करना कि किसका क्या रोल होगा, और साथ ही साथ उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपने देख लिया, आपने जीएसटी काउंसिल देख लिया, और साथ ही साथ आपने देखा कि द लेटेस्ट इश्यूज विच आर अराइजिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. इसमें दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज टू इश्यूज आर मोर रिसेंट एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट इज द लेटेस्ट कोविड क्राइसिस. तो कोविड क्राइसिस में आपने देखा कि अचानक से पूरी दुनिया में कोविड फैलता है, एंड इन मार्च 2020 द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज नेशनल लॉकडाउन. मैंने आपको पहले बताया था कि देयर वाज अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन कि अंडर व्हाट लॉ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज नेशनल लॉकडाउन. तो इसमें खास बात ये थी कि दे एक्सरसाइज देयर पावर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. और इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि द सेम थिंग कैन बी डन अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट by the states also. लेकिन इसमें जैसे ही सेंटर ने लॉकडाउन लगाया, there was no resistance on the part of the state. तो सेंटर ने जैसे नेशनल लॉकडाउन की बात करी, वैसे सारे स्टेट्स ने अपने यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया. जबकि अभी भी आप देख रहे हो कि there is a lots of resentment in different small countries of the world. आपने अमेरिका में देखा, the people are not ready to follow the restrictions. You have seen many such cases in the different countries of the European Union also. लेकिन यहाँ पे सेंटर के लगाते ही स्टेट ने इसको अपने आप इम्पोज किया. सो दिस इज एन एग्जाम्पल where we can see the example of the cooperative federalism, and simultaneously this lockdown increase the financial dependence of the state over the center. क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो 2 साल का टाइम रहा है, this time period was not very good for the financial health of the country, not only for this country but for the entire world. और अगर आप पूरी दुनिया का निकालोगे कि कितना लॉस हुआ, तो एक कई सौ ट्रिलियन डॉलर्स में जाता है. So all the countries in the world and their economy, they have faced the crisis ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक. अब यहाँ पे स्टेट्स की डिपेंडेंसी सेंटर पे बढ़ी, तो सेंटर ने क्या किया, इसमें आप याद रखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनहांस्ड द बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट. आपको याद होगा बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट भी हुआ था. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरोइंग लिमिट जो है वो स्टेट के लिए बढ़ा दिया, और बोरोइंग लिमिट कितनी बढ़ा दी, 3% से बढ़ा के 5% कर दी. तो इसमें स्टेट का क्या रिक्वेस्ट थी, स्टेट सेंट्रल एक पहले तो ये कह रही थी कि इसको स्टेट्स आरबीआई से बोरो करें, और स्टेट ये कह रहे थे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करेगी. बट अल्टीमेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू लिमिट टू बोरो फ्रॉम 3% to 5%. लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, इसमें 3 से जो 5% में 2% का जो राइज आया है उसमें 0.5% का जो इंक्रीज था, दैट वाज डन अनकंडीशनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट्स. तो उन्होंने बोला कि इस बोरोइंग में 5.5% के लिए तो हम किसी तरीके का कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगला 1% जो आप लोगे उसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने इस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया है. तो इसमें सेंटर ने क्या बोला, सेंटर ने बोला कि यू विल हैव टू डू सम स्पेसिफिक रिफॉर्म्स लाइक डेट सस्टेनेबिलिटी, जॉब क्रिएशन, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एंड अर्बन डेवलपमेंट. क्योंकि आपको मालूम है कि इकोनॉमी में जब स्लम्प आया तो लगातार सरकार कोशिश कर रही थी, बिकॉज दैट वाज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, और जो इंडस्ट्रीज थी दे फेस्ड मैसिव लॉसेस, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जब खत्म हो गई तो इकोनॉमी भी लॉस में चली गई. तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, सरकारें उस दिशा में कैसे, उस डायरेक्शन में कैसे काम करें, इसके लिए इन्होंने बोला कि 5% तो आप अनकंडीशनल ले लो, लेकिन जो 1% लोगे उसके लिए आप कुछ सर्टेन स्पेसिफिक सेक्टर्स में काम करोगे, और बाद का जो 0.5% होगा वो हम तब आपको इश्यू करेंगे व्हेन द स्टेट्स आर गोइंग टू अचीव की माइलस्टोन इन दीज एरियाज. यानी हमें दिखना चाहिए कि आपने इस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है, एंड इफ वी आर कन्विंस्ड देन ओनली वी आर गोइंग टू रिलीज रेस्ट 0.5% ऑफ द मनी. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज
चीज आपको देखने को ये मिलेगी कि सेंटर इज सपोर्टिंग स्टेट्स, बट साइमल्टेनियसली दे आर आल्सो पुटिंग सर्टेन कंडीशंस दैट यू विल हैव टू परफॉर्म, एंड इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन ओनली वी आर गोइंग टू रिलीज रेस्ट ऑफ द फंड. तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, because this is a very recent example and we have seen it in last 2 years, इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज एम्फीबियन इन नेचर, एंड ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने शेप को चेंज करता है. तो ये जो कोविड क्राइसिस था, दिस इज अगेन अ वेरी यूनिक टाइम पीरियड विच बेसिकली टॉक्स अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ देयर इज अ पावर शेयरिंग एंड द बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. एक अभी जो आपको बहुत रिसेंट देखने को मिलेगा वो अभी ये हुआ है जो पंजाब में हुआ है, ब्रीच ऑफ पीएम सिक्योरिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब. This is again a very very important issue because it has raised many issues related with the federal structure of the Indian Constitution. हम सबको पता है कि law and order is the subject matter of the state list. तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, स्पेशली जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, he is facing huge threat of life across from the different for the different region and from different terrorist group and other organizations. अब यहाँ पे इनका क्या होता है कि इनकी जो सिक्योरिटी होती है, that is a prime responsibility of SPG, but once the prime minister is going to travel, स्पेशली जब वो किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वो उस स्टेट के गेस्ट होते हैं, और जिस भी स्टेट के गेस्ट होते हैं वहां पे आउटर सिक्योरिटी जो होती है दैट इज मैनेज्ड बाय द पुलिस ऑफ द कंसर्न स्टेट. तो यहाँ पे जैसे, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, मिसेस गांधी की हत्या हुई थी, बेअंत सिंह जी की हत्या हुई थी. सो द कन्वॉय एंड द रूट शुड बी वेरी मच क्लियर, और किस रूट को वीआईपी जब भी मूव करते हैं, आप एक चीज याद रखिएगा, उनका एक अल्टरनेटिव रूट हमेशा फिक्स किया जाता है कि इमरजेंसी के केस में उनकी एग्जिट कहां से होगी, तो वो रूट पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए. तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन दिस केस देयर आर क्लियर गाइडलाइंस ऑन द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एक स्टैंडर्ड एसओपी होता है जो कि स्टेट्स को मालूम होता है कि इफ द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट अ पर्टिकुलर स्टेट देन व्हाट काइंड ऑफ क्लियरेंसेज एंड व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है दैट इज वेरी सीरियस फॉर मेनी रीजंस. उसका रीजन ये है कि कल को, पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ था तो प्रधानमंत्री और कुछ अलग मंत्रियों के या मुख्यमंत्रियों के चॉपर्स को बंगाल में उतरने नहीं दिया गया था, लेकिन ये क्राइसिस वहां भी नहीं हुई थी जो अभी फेस की गई है. अब एक इंपॉर्टेंट इशू क्या क्रिएट करती है कि टुडे दिस इज प्राइम मिनिस्टर, टुमारो इट मे बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी अदर स्टेट और एनी अदर हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. तो उनकी सिक्योरिटी को अगर इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है विच कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस can it be said that the state governments are performing their duties properly towards giving security to such persons who are holding high constitutional positions? तो एक इसमें सवाल ये भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आर्टिकल 365 जो होता है, अंडर आर्टिकल 365 सेंटर कैन इशू सर्टेन directions to the state government and state is bound to follow those orders, and if the state is not following then it amounts to failure of constitutional machinery. The order which the central government is going to give, definitely that should be constitutionally valid. So here in this case, when there is a standard SOP which is given by the Ministry of Home Affairs to the concerned state government, and if the state government is not following that standard protocols which is related with the security of any VIP, CGI को भी ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, प्रेसिडेंट को भी ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, then in that circumstances can it be said that there is a failure of constitutional machinery in a particular state? So this is again a very serious issue, क्योंकि आज ये प्रधानमंत्री के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, and because in the different states there are regional political parties, and if certain things are going to happening more and more, then that is not a very healthy sign for a healthy democracy and the healthy federal structure of this country. So these are the latest development which we have seen in the direction of the federal structure of the Indian Constitution, and there are certain new challenges also. Some things are good, some things are some things are quite thoughtful. जैसे मैंने आपको बताया तीस्ता रिवर को लेकर के, sometimes the state governments are not ready to implement the schemes of the central government. So this is not in the interest of the healthy federal structure of this country. तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी. I don't know what has happened. So let's see what is going to happen especially in this case, because this is a new kind of challenge towards the
to the federal structure of this country. So that is all on my part over this topic, and from my side, this topic is over. So on Monday, we will discuss